Hello everyone, welcome back. In this lecture, we are going to discuss the bacterial diseases. So the first disease is tuberculosis. Tuberculosis is the OIE listed disease. The similar OIE, which is now WOAH. Common names. इसके बहुत सारे कॉमन नेम है. फर्स्ट इज द पर्ल डिजीज, किंग ऑफ डिजीजेस, कंजम्पशन डिजीज, ग्रेट वाइट प्लेग, लूपस वल्गैरिस, पॉट्स डिजीज, स्क्रॉफुला and acinitis acinitis. Okay. It is a chronic wasting disease. Coming to the etiology. इस साइड में लिखता हूँ etiology, उस साइड लिखता हूँ the affected species हैं. तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट अफेक्ट्स मैन, एनिमल्स, ऑल, है ना. माइकोबैक्टीरियम बोविस, इट अफेक्ट्स मैन एंड एनिमल्स. माइकोबैक्टीरियम एवियम, इट अफेक्ट्स बर्ड्स, पिग्स. Mycobacterium leprae, it causes only leprosy in man. Humans में leprosy करता है ये. Now coming to the Mycobacterium microti, it is also called as Vol bacillus. रिमेंबर द नेम, वोल बैसिलस. स्टेनिंग और इनकी बात करें तो ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं. टाइप की बात बता रहा हूँ, एरोबिक होते हैं. उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ZN स्टेन इज़ यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ माइकोबैक्टीरिया. ट्रांसमिशन एरोसोल, मिल्क, as well as genital transmission. अगर अपन एफिनिटी की बात करें तो एफिनिटी इज़ फॉर द रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड. जिस तरीके से थिलेरिया में प्री स्कैपुलर है, सिमिलरली फॉर द ट्यूबरकुलोसिस रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड इज इम्पॉर्टेंट. और ये एक आध में नहीं है, इन ऑल एनिमल्स. पिग्स की बात करें तो पिग्स में मिजेंट्रिक लिम्फ नोड इज ऑल्सो स्वॉलन. Important point to be remembered is no bacteremia is produced in TB. ट्यूबरकुलोसिस में बैक्टीरियमिया नहीं देखा जाता है. मैक्रोफेजेस की बात करता हूँ मैं. तो मैक्रोफेजेस में मैक्रोफेजेस प्रोलिफरेट टू फॉर्म first the giant cell, है ना. These giant cells are also called as Langerhans cells, and these giant cell or Langerhans cells are horseshoe shaped. It has horseshoe shaped nucleus. And secondly, the macrophages causes epithelioid formation.
important point is the Langerhans cell are absent in tuberculosis of dog and cats. The tubercle are hard, fibrinous, fibrosis also occurs. Therefore, the fibroblast cells are present. When the tubercle are soft, then there is caseous necrosis along with calcification is seen. Calcification के कारण जो nodules होते हैं they become gritty, so there is gritty nodules is present. Important is the calcification. The calcification is absent. They are not seen in buffalo and poultry. In poultry and buffalo, the calcification is not seen. So, another point to be remembered is in poultry and in calves, in case of tuberculosis, the intestinal form is more common. There are some resistant species to TB. Naming them are horse and sheep. They are resistant to tuberculosis. Now coming to the diagnosis part. The diagnosis is done by single intradermal, double intradermal, thermal, Stormont test in humans, Mantox, gamma interferon test, and the animal inoculation in guinea pig is done. The next is John's disease. The John's disease is also a chronic wasting disease. Also called as para-tuberculosis or chronic bacillary diarrhea. Etiology is Mycobacterium avium, subspecies para-tuberculosis. The host is ruminant and the transmission is here no aerosol or something is there. The transmission is by fecal-oral route. Clinical sign is shooting diarrhea in cattle and buffalo. There is severe emaciation. In sheep only emaciation is present.
means no shooting diarrhea is seen in sheep. So just remember it. Coming to the pathological signs, there is transverse corrugation in intestine of cattle and buffalo. This transverse corrugation is also called as rugae. So intestinal corrugation is seen in paratuberculosis, but just remember that these corrugation are absent in sheep and goat and horses. So they are only present in cattle and buffalo. An important sign is the intestinal macrophages These intestinal macrophages are arranged in the bundle of phagots. Coming to the diagnosis part, for the diagnosis there is rectal pinch test, PCR, it is gold standard test for the Jones disease, and similar to the tuberculin test there is Jonin test. So it is a double intradermal test. There the tuberculin, in tuberculin there is single intradermal, double intradermal, but Jonin test is a type of double intradermal test, and ये आ चुका है पहले भी, है ना. Just remember this, Jonin test is a double intradermal test. Now coming to the another disease, actinomycosis. So actinomycosis, also called as lumpy jaw. Causative agent is Actinomyces bovis. It is a gram positive bacteria, also called as ray fungus. It has, the shape is club shaped. There is presence of sulfur granules in this club shaped lesions. करता क्या है ये? It causes rarefying osteomyelitis. Rarefying osteomyelitis of mandible bone. The inflammation is pyogranulomatous inflammation. Coming to the lymph node, just remember that lymph nodes are not involved. कोई lymph node involved नहीं होता है. अगर बोन की बात करें तो बोन में देयर इज़ पेरियोस्टियल बोन, जहाँ पेरियोस्टियल रीजन में क्या होता है, देयर इज़ पेरियोस्टियल बोन सिस्ट फॉर्मेशन, और इसको बोलते हैं इनवल्क्रम. सो तो रिमेंबर दैट इनवल्क्रम इज सीन इन एक्टिनोमाइकोसिस. हॉर्सेस की बात करें तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. हमने सर्जरी में भी पढ़ लिया था ये, इन द अफेक्शन ऑफ नेक, है ना. सो इन हॉर्सेस it causes Paul Evil and fistulous wither with brucella. ये क्वेश्चन आता ही आता है ना.
The actinomycosis with brucella causes polyvial and fistulous wither in horses. Now next is actinobacillosis. So it is also called as wooden tongue. ये ग्राम नेगेटिव है. Similar club shape and sulfur granules are present. यहाँ भी अलग क्या है कि there is lymph node involvement. और कौन सा lymph node, और इसकी बात करें तो it is parotid and submaxillary. Lesion की बात करें, so the lesion here is chronic suppurative granulomatous inflammation of सॉफ्ट टिश्यू. वो इन्फ्लामेशन हार्ट टिश्यू का था, ऑस्टियोमाइलाइटिस था. ये सॉफ्ट टिश्यू का है और यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू टंग है. जस्ट रिमेंबर दैट इन शीप में नो लीजन इज सीन इन टंग. Now coming to another disease, that is anthrax. Anthrax, it's also a zoonotic occupational hazard also. Common names are carbon, CHARPON, splenic fever, इससे ज़्यादा important नाम है ये, splenic fever, wool sorters disease, also called as Siberian ulcer, also called as malignant carbuncle, also called as rag pickus disease. Now coming to the host, the susceptible host are cattle and sheep. These are the susceptible host. Resistant की बात करें, those which are resistant are carnivores and birds. Most prevalent in the rainy season. Coming to the transmission. Transmission is by the ingestion. Mechanical transmission is also there. Mechanical transmission by the wild birds, flies. Incubation period is 1 to 14 days. Coming to the postmortem lesion. First is splenomegaly. और ये splenomegaly is absent in horse and sheep. The spleen look like a cherry jam appearance. स्प्लीन का अपीयरेंस चेरी जैम के जैसा हो जाएगा. और ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द filled unclotted blood. और ये unclotted blood क्यों है? तो it is due to fibrinolysin produced by bacteria. And third one is oozing out of dark
terry colored blood from natural orifices. Another one is rigor mortis is absent. Another is carcass is bloated. Another is early putrefaction या putrefaction. Another is acute septicemia. In human being, in humans, the respiratory form is called Wool-Sorter's disease, and in human there is another form, that is cutaneous form. It is called as malignant carbuncle, also called as Hyde-Porter disease, also called as एस्चार. ये सब इम्पॉर्टेंट है. हाइड पोर्टर, एस्चार, मैलिग्नेंट कार्बंकल, सब. इससे भी इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत, ये आना ही है ना. अल्जेरियन breed of sheep, it is resistant to एंथ्रैक्स. कार्निवोर्स और उसकी बात तो कर ही ली. शीप में इम्पॉर्टेंट है कि देयर इज़ अल्जेरियन ब्रीड विच इज़ रेसिस्टेंट टू एंथ्रैक्स. अगर एनिमल की बात करें जनरली, तो इन एनिमल्स मोस्टली हाइपर एक्यूट और fulminating form of anthrax is seen. Diagnosis important है. Pearl string test, S. coli precipitation test, it detect antibody. Another is McFadden reaction. The McFadden reaction, in this we use the polychrome methylene blue, और इससे जो बैक्टीरिया है वो ब्लू कलर्ड हो जाएगा, और जो कैप्सूल है बैक्टीरिया का वो हो जाएगा पिंक कलर्ड. ये सब इम्पोर्टेंट है, और ये सबको पता होगा ऑलरेडी कि डू नॉट ओपन द कार्कस इन एंथ्रैक्स. The another bacteria is Staphylococcus. So the disease is Staphylococcus infection. बात करते हैं फर्स्ट स्टाफ ऑरियस. लैम्ब में जो कॉज है इट इज़ टिक पाएमिया, और जो टिक है एक्सोडिस रिसिनस. हॉर्स बोट्रोमाइकोसिस एंड सीरस कॉड. ये सारे डिजीज़ कर रहा है स्टैफ ऑरियस. लैम में ये, हॉर्स में बोट्रोमाइकोसिस एंड सीरस कॉड. बर्ड्स में बात करें तो बम्बल फुट कंडीशन. ह्यूमंस की बात करें तो इट इज़ रिटर्स डिजीज़.
या एक्सफोलिएटिव स्किन डिजीज़ या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। द नेक्स्ट इज स्टाफ इंटरमीडियस, और ये स्टाफ इंटरमीडियस जो है ये स्किन पे रहने वाला है बहुत ज़्यादा। कॉजेस कनाइन पायोडर्मा। अनदर इज स्टाफ स्टेफाइलोकोकस हाइकस, ये स्मॉल ही होगा ना, ये सब तो अंडरस्टूड है, ठीक है। सो इट कॉजेस एक्सुडेटिव dermatitis, it causes greasy pig disease, it causes seborrheic dermatitis। इतना आपको इसमें याद रखना है। Coming to the streptococcus, स्ट्रेप्टोकोकस में स्पीसीज़ वाइज अपन लिखते हैं कौन क्या करता है, और जिसमें जो इम्पोर्टेंट होगा बस वो आगे बढ़ते, बिकॉज बहुत ज़्यादा है ये बैक्टीरिया में, अदरवाइज़ खो जाएंगे अपन इसी टॉपिक में, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, इट कॉजेस स्कारलेट फीवर या सेप्टिक सोर थ्रोट, और ये इसी का जो टेस्ट होता है इट इज़ डिप टेस्ट। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के लिए। कमिंग टू द स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई, सबको पता होगा कि इट कॉजेज स्ट्रेंजल्स। स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिकस, ड्राई काउ mastitis, dysgalaxia, it causes acute mastitis, agalaxia, it causes chronic mastitis। स्ट्रेप्टोकोकस स्विस, या इसी का नाम है पोर्सिनस, इट कॉजेज सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस, इट ऑल्सो नोन एज जॉल एब्सिस, या इसको बोलते हैं स्वाइन स्ट्रेंजल्स। सब इम्पॉर्टेंट है। It also causes, the streptococcus also causes naval ill, और अगर स्पीसीज की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस कैनिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस जू एपिडेमिकस, ये करते हैं यूरोजेनाइटल अफेक्शंस। अब इनमें कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे स्ट्रेंजल्स। स्ट्रेंजल्स इम्पॉर्टेंट डिजीज है इक्वाइंस का, ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वाइन डिस्टेम्पर। इसी को बोलते हैं एडिनाइटिस इक्वोरम। इटियोलॉजी बात हमने पहले कर ली, इट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई। होस्ट, इट इज़ यंग हाउस। साइन की बात करें, म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज। अब देखना यहीं पे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज है ना, आपको देखने को मिलता है यूनिलेटरल, और ये देखने को मिल सकता है बाइलेटरल,
एक नाक से भी आ सकता है, दूसरे से भी आ सकता है। तो अगर ये म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज यूनिलेटरल रहा तो इट इज़ सीन इन ग्लैंडस, और अगर बाइलेटरल रहा इट इज़ सीन इन स्ट्रेंजल्स। अगर स्ट्रेंजल्स की बात करें तो यहाँ पे फेरेंजियल एंड सब मैक्सिलरी lymph nodes are involved. Coming to the abscess in lymph node, जिसको एम्पाइमा बोलते हैं, ऑफ गटरल पाउच एम्पाइमा भी स्ट्रेंजल्स में मिलता है। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ strangles. So there are some complication of strangles. First is purpura, hemorrhagica. Another is facial paralysis, and another complication is roaring disease. Now glanders. Glanders is also called as Farsi, Malleus या mauve, MAUVE. Farsi is also the cutaneous form. ये आता है क्वेश्चन की cutaneous form of glanders is called as, तो it is called as Farsi. ये नोटिफाइबल डिजीज़ है। सो इट इज़ अ नोटिफाइबल डिजीज़। अगर इसमें बात करें नोटिफाइबल डिजीज़ तो अपने पास ग्लैंडर्स और दूसरा एक और है क्यू फीवर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट। इट वाज इन 1899। ठीक है। अगर इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी इज बर्खोल्डेरिया मेलियाई। पहले इसका नाम था स्यूडोमोनास मेलियाई। हाँ, तो ये भी याद रखना आपके पुराना नाम क्या है और अभी का नाम क्या है। ठीक है, तो ये अभी का है। अनदर ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे है एडल्ट हॉर्सेस। स्ट्रेंजल से कंपेयर करना, आप वहाँ मैंने यंग बताया था, यहाँ ये एडल्ट हॉर्सेस है। 2 फॉर्म्स, फर्स्ट इज़ पल्मोनरी एंड देयर इज़ क्यूटेनियस फॉर्म। क्यूटेनियस की बात अपन पहले कर चुके हैं कि क्यूटेनियस को ही बोलते हैं फारसी। तो फारसी कॉट्स या फारसी बर्ड्स, क्यूटेनियस वाले को ही बोलते हैं लिम्फ ग्लैंडस। पल्मोनरी की बात करें तो इसमें क्रॉनिक कफ, निमोनिया और अभी जस्ट बताया मैंने यूनिलेटरल म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है ना। नॉस्ट्रिल से यूनिलेटरल म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आने लग जाएगा। क्यूटेनियस का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज़ स्टार शेप्ड स्कार। स्टार शेप्ड को ही ना स्टिलेट भी बोलते हैं। तो स्टिलेट स्कार्स आर प्रेजेंट इन ग्लैंडस, वो भी उसके फारसी वाले में है ना, जो कि क्यूटेनियस फॉर्म फारसी है उसमें देखने को मिलता है।
डायग्नोसिस स्ट्रॉस टेस्ट, है ना। इसमें क्या करते हैं कि जो गिन्नी पिग है इसमें इंजेक्ट कर देते हैं और उसको हो जाता है ऑर्काइटिस। इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रॉस टेस्ट। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेम टेस्ट एक और देता है, दैट इज़ ब्रुसेलोसिस या ब्रुसेला में सेम स्ट्रॉस टेस्ट करते हैं और वो भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। नेक्स्ट इज़ मेलिन टेस्ट। मेलिन टेस्ट इट इज़ एन इंट्राडर्मल, है ना। और ये इंट्राडर्मल जो है ये ऑप्थेल्मिक होता है। करते क्या है कि जो लोअर आईलिड है ना, लोअर आईलिड में इंट्राडर्मल ये दे देते हैं। मतलब लोअर आईलिड के इंट्राडर्मल में जब देंगे तो इसको बोल देंगे इंट्रा पाल्पेब्रल, और ये लगा देंगे बिल्कुल सिमिलर जॉनिन टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट जैसा ही स्वेलिंग हो जाएगा। तो इट विल बी अ कन्फर्मेटरी फॉर द ग्लैंडस। नेक्स्ट इज ब्लैक क्वार्टर। ऐसे करते हैं कि इसको मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लूँगा, ब्लैक क्वार्टर और इससे आगे, है ना, रेड वाटर डिजीज़, ब्रैक्सी, ब्लैक, बिग हेड, टिटनस, सबको। इसको मैं अभी पे पॉज करता हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें फिर बैक्टीरियल डिजीज़ पार्ट 2 में मैं बाकी कवर कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे।